Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are just in the starting of the 4th chapter. We had a couple of breaks. हम लोग ने बीच में गैप लिया था 1-2 week because of my Vrindavan Yatra, and we had some privileged guest speakers speaking. So we had a small break. So now we will be continuing with our 4th chapter. So we have completed 4.9. So we will be starting with 4.10. Bhagavad Gita 4.10. 4th chapter number 4, verse number 10. So the verse goes like this: Vitaraga bhaya krodha manmaya ma upashritaha bhavato gyan tapasa puta mad bhavam agataha. Can anyone read the translation for this verse? Yeah. Read. Being free from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me. Louder. It has to go into Being this free mic. from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me. Many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. So what is the crux of this verse? Lord is saying, Mera ashray lo. Mera ashray lo. That is what Lord is saying. Man maya ma upashritaha. Completely surrendered to me. Now tell me, what is the meaning of surrender? आप बोलेंगे प्रभु जी surrender means no free will, जो बोलेगा सामने वाला बोलेगा उस हिसाब से करना है. So that is a general understanding. But before that, what is Lord asking you to be free from? Attachment, fear and anger. What is this attachment, fear and anger? I have told you n number of times. Let me see who remembers it. He gets one extra sweet treat. Tell me, who can remember? Come on, I want the seniors at least to answer. The juniors can't, no problem. Is it like Anger, fear. Acha. So let me give you a clue. Bhaya, क्रोध. कुछ याद आ रहा है इसे? See, we all at all times we are already having fear of the future. Fear of the future. And past के बारे में क्या रहता है? Shok is a form of anger, grief, and present you are always in delusion, confusion. क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा. You are totally confused. So what does this mean? One who is free from fear, anger. These are two factors, very important factors. Another important is Vita means totally freed from attachment, bhaya and anger. Attachment is the root cause of creating fear and anger. As you rightly said, yes, dhyata vishan pumsa, yes, that is true. But even in life, even when you are not attached, you are always having fear. An unknown fear, uncertainty. That is why you all take LIC policy, right? Why we take LIC policy? क्या मालूम कल मर गया तो that fear is always lurking on your head. एक भय हमेशा हमारे सिर के ऊपर रहता है. और शोक भी रहता है. For the past, what all mistakes we have done, what all mistakes we have committed, उसका शोक रहता है. But यहाँ पे one who is free from fear, anger and attachment, then only there is any chance or any possibility of one to surrender. Because surrender by force is different, surrender by free will is different. Surrender by force means you have no other choice. मैंने आपके कंधे पे बंदूक रख दिया, बोल दिया अभी आपको मेरे शरणागत होना पड़ेगा, जैसे मैं बोलूं वैसा करना पड़ेगा. उसमें आपका अगर इवन इफ यू आर नॉट फ्री फ्रॉम
attachment, fear and other things, no problem. But जो व्यक्ति फ्री विल में है, आपको ऑप्शन है, या आना तो आ सकते हैं, संडे मॉर्निंग पिक्चर देखने जाना है तो पिक्चर देखने जा सकते हैं, घर में लेट के अपने बिस्तर पे सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं. I mean, you got n number of options. There is no compulsion. भगवान ने कहीं उठ के बोला आपको सुबह, नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, मैं तो आपको दंडित करूंगा. भगवान ने. So you are at a free will. Whether you want to come or you don't want to come is your choice. उन conditions में when you have got a choice, उस वक्त हम लोग को ये तीन चीज पकड़ ले. First is attachment. अगर attachment छोड़ दिया ना, rest things automatically goes. You have a fear that your mobile may be stolen. Why? Because we are attached to it. We are attached to it. हाँ प्रभु जी मेरा contact सब उसमें, मेरा पूरा account details है, this and that, blah blah blah. But the bottom line is we are attached to it. Why we always fear that we may lose someone? Because we are attached. And attachment is the first thing or the first step for getting freed from tension. A simple example I'll tell you. It's a nice story. Once एक पक्षी उड़ रहा था और उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा, piece of flesh, meat was in its beak. सोचा मैं बैठ के आराम से बैठ के खाऊंगा. And that suddenly big dangerous ferocious bird started following that bird, and this bird was in tension. क्या करूं? How will I save myself? All vultures and eagles and all, they started flying besides her. Like that war planes में होता ना, the dog fight, couple of war planes also following that one war plane. It was like that. So now this bird was wondering, fearing, now his wife was in danger. What should I do? Then it realized, they are not running behind me, they are running for this piece of meat. तो bird ने piece of meat छोड़ दिया. It left it from its beak, and the rest of the birds ran behind that piece of meat, and this bird was flying nicely and without any tension. So what was the fear? What was the problem with that bird? It was attached to that piece of meat. So the minute it left the piece of meat, it was happy. जैसे उसने उस मांस का टुकड़े को छोड़ दिया, पक्षी को शांति मिली. तो हमारा सब प्रॉब्लम क्या होता है? ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, नो मेरा 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 जो अटैचमेंट रहता है ना, दैट इज द मेन रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. अगर आपको शांति चाहिए जीवन में ना, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव अप अटैचमेंट. अटैचमेंट है तब तक प्रॉब्लम. कैन समवन गो एंड टेल दैट्स टू मच ऑफ नॉइज आल्सो. So one who gives up this attachment is the biggest, is the only then there is any chance of your getting attached to God. जब तक आप भौतिक चीजों के साथ कनेक्टेड हो, तो भाई ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा आपका है माना. अटैचमेंट को छोड़ना पड़ेगा. उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर आपने वक्त रहते उसको छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो मौत के वक्त आपसे जबरदस्ती छीना जाएगा. राइट और रॉन्ग? इफ यू वॉन्ट टू लीव इट इन द राइट टाइम, इन द राइट प्रोसेस, इट इज गुड. छोड़ना तो है ही किसी भी हालत, बट इट्स बेटर पहले ईमानदारी से छोड़ो. नहीं, आई विल नॉट लीव इट लाइक दैट. आई विल लीव इट आफ्टर, I will leave it only after I am forced to leave it. Because वहां पे उस वक्त आपको free will नहीं होता है. You have free will now. You want to get attached, you want to get detached, you have free will now. But at that moment, you will not have free will. It will be by force. So rather, when you are given free will, at that time, if you detach of your own, then only there is a possibility of attaching yourself with God.
देन द क्वेश्चन ऑफ सरेंडर कम्स। पहले आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़ो तो सही, वो जोड़ने के लिए पहले आपको ये छोड़ना पड़ेगा भौतिक चीजों के साथ जो आपका लगाव है। तो क्या हमको इसका मतलब ये है कि हम हमारे माँ बाप पिताजी मतलब बच्चे परिवार बिजनेस सबको छोड़ दें, कल से सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएं? What should be our process in that? If you apply what I am telling you literally as it is, copy paste करते हो तो इसका मतलब यही हुआ ना, कल से पत्नी बोलेगी सब्जी लेके आओ, तू कौन, मैं जब नहीं पहचानता एंड साड़ी लेके आओ, कौन साड़ी, कौन तू, मैं नहीं पहचानता हूँ। और हस्बैंड ने बोला खाना लेके आओ, क्यों मैं तुमको खाना खिलाऊं, तुम कौन हो, यू आर अ सोल, आई एम अ सोल। So how will it be? How can it be practically be applied? The application is possible. Yes, Mataji. By keeping Krishna in the center and whatever activities that you do at home, it would be like thinking you're doing it for Krishna. And yes, I mean the normal duties should continue, but it's nothing like I'm doing it for my husband, I'm doing it for my child. First preference is Krishna, and then yes, then other duties. Okay, that's okay, but it's a little fanatical, little more practical, little more something which is more possible to execute. Anybody else? Offering fruit to Krishna. Huh? Whatever you get it actually by offering to the God. Yeah, that is karma yoga. That is karma yoga. That is one of the step to go towards bhakti yoga. जो व्यक्ति भगवान के लिए समर्पण नहीं कर सकता तो भगवान को समर्पण कर देता। It is easier to give your belongings, what you possess, ठीक है, भगवान को दे दे। But if I tell you प्रभु जी कल से आपको कुछ चीजें छोड़ना है, that becomes difficult. It's challenging. But one who does this means he is really loving God. One who leaves meat eating, one who leaves intoxication, one who gives up illicit sex and gambling. That means what? He really wants to change from inside. He has really developed a love for God and he wants to go closer to God. And it is a great, that's why Prabhupada gives a very nice explanation. कहते हैं कि जिसने मांस भक्षण, जिसने शराब व्यभिचार और जुआ छोड़ा ना, उसको महाबाहो कहा गया। Krishna addresses Arjuna many times as Mahabaho. Mahabaho means very powerful. जिसकी बाहुएं भुजाएं बहुत powerful है. So he says it takes great strength for one to give up these attachments. These attachments are very deadly. But for one who has never, suppose let's say someone comes to me and tell me, Prabhuji, I am a born vegetarian. No problem. You are attached definitely for something else. Sometimes to bodily concept, sometimes to enjoying material life, material world. Attachments are there. It may change from person to person. व्यक्ति से व्यक्ति का attachment का जो लगाव है, व्यक्ति का लगाव है, वो अलग रहता है। कोई मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका जीवन में कोई बुरी व्यसन नहीं है, बट बच्चे के साथ इतने लगाव में है कि वही सबसे बड़ा उनका दुख का कारण बन जाता है। See, attachment is good, but by attachment, what you are doing to your child, you are making your child irresponsible. आप उसके कंधे पे you are not putting the responsibilities, और जिस दिन वो responsibilities अपने आप करने लगेगा, 4 बार गिरेगा, 5वां बार उठ के बराबर चलेगा। Which animal is like that, so attached? जैसे उसके पंख उड़ आते हैं, चूजे को पंखा आ जाता है and it can feed itself. The bird says, no, it's your baby, you have to take care. इंसान एक है, घोड़ा हो गया, फिर भी उसको रोटी बना के दूं, ये बना के दूं, वो करूं, क्यों? Because see, serving is a default setting in us. If you don't serve God, you will serve dog. God and DOG इतना ही अंतर. O is common in between. व्यक्ति क्यों? आप you see so many people having dogs in their house and they are serving the dog. Why? If you tell them go and serve God, I'll serve my dog very nicely. They will serve dog, but you will have to serve someone. Serving is our default setting. किसी भी तरह सेवा करना हमारे अंदर भरा हुआ है. सेवा हमारे अंदर करने के अंदर किसी ना कोई सेवा करते रहेंगे.
ये हमको पता नहीं कि हमको वी नो नॉट बी अवेयर ऑफ इट, बट knowingly unknowingly either you will serve your child, your house members, your relatives, your friends, your so called what do you say समाज, किधर ना किधर आप कुछ ना कुछ सेवा में ही रहोगे, को सर्व करना हमारे अंदर का एक डिफॉल्ट सेटिंग है. बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट वांट टू सर्व, एंड व्हेन यू स्टार्ट सर्विंग गॉड ना, बिफोर यू सरेंडर you will be tested. You will be tested 10 times, 100 times, 1000 times. And कोई टेस्ट पेपर इतना स्ट्रांग रहेगा आपको लगेगा एग्जाम बीच में छोड़ के भाग जाओ. Nowadays definition of gurus have changed. All of you heard the story of Maluk Das yesterday, right? Yes. I'll tell you another story of him only in his later part of his life. Once there was a judge in Calcutta. Okay, कलकत्ता में बैरिस्टर थे, जज थे. उनको रात को एक सपने में एक व्यक्ति आया और उसने बोला, बेटा ये बैरिस्टरगिरी में, ये वकालत में तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, बस थोड़ा धन जरूर मिल जाएगा बट तेरा जीवन को शांति नहीं मिलेगी. तो एक काम कर, तू भगवान का नाम ले, भगवान का नाम जप ले. Very nicely it came and told the dream. He got up and he was wondering, ये कौन है ये बाबा जो मेरे सपने में आया. He was wondering, ये अयोध्या में रहने वाले और वो कलकत्ता में बैरिस्टर. तो जज सोच रहे थे कि ऐसा कैसा हो. तो he left everything temporarily and he went in search of this Babaji. He said, let me find out. His name was Chaudhary. The Chaudhary went in search of this Babaji. सब जगह ढूंढा, एंड में वृंदावन के पास गए, तब ये बाबा मिले. फाइनली वही बाबा है क्या जो मैंने सपने में देखा. देखने में तो एकदम उसके जैसे, मगर when he went near, उनको भी चेला बनाने के पहले, मतलब उनका चेला बनने के पहले एक बार देख तो लूं कि मैं कहीं यहाँ फिट हो सकूंगा कि नहीं. बाबा का मालूम पड़ा चेला बन गया. क्या पढ़े लिखा व्यक्ति है ना, पढ़े लिखा व्यक्ति को ज्यादा तर्क वितर्क रहता है. यू नो, वन हु इज लेस एजुकेटेड ना, ही हैज मोर फेथ ऑन गॉड. उसको बोल दिया ना, इसके लिए ना अनपढ़ व्यक्ति का अंदर भक्ति का बीज ज्यादा होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा तर्क वितर्क करेगा. तो बाकी जज थे तो थोड़ा बहुत तर्क वितर्क करेंगे. तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं इनके साथ 84 कोस का परिक्रमा करता हूं. क्योंकि उन्होंने देखा उनका असिस्टेंट जो था, असिस्टेंट को तो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, बुरी तरीके से, यहां तक कि पीट देते उसको, मार देते थे. कभी उसको बेचारा पूरा दिन बेचारा मेहनत करता था. और बाबा जी कैसे खाते थे, दिन में एक टाइम और रात को सिर्फ दूध पी के सोते थे. दिन में एक टाइम खाते थे. He was very high in his tapasya. What he did was, once he called him, he went to this Babaji. तो एक दिन देखा कि 84 कोस परिक्रमा हो रही है. ये बेचारा अकेला, गोविंद जिसका नाम था, लाल गोविंद, लाल महाराज या लाल गोविंद, ऐसा कुछ तो नाम था उसका, forgetting his real name exactly. तो he told him that this fellow is working from morning to night, he is serving him. How is it possible that a person can serve such a person? He said, yes, I can serve such a person, that is not a problem. And he saw him daily किचन को गोबर से साफ करता था, चूल्हा लगाता था, रोटी बेल के, सब्जी बना के, दाल चावल बना के, भगवान को भोग धरा के वो साधु को खिलाता था. कंटिन्यूस इट वाज गोइंग. 84 कोर्स तो महीना भर चल रहा है. तो एक दिन क्या हुआ, एक मैया आई, लेडी, एंड शी केम एंड came to the kitchen and just she came to stir the food. And this Babaji saw, Maluk Das ji saw. He became mad. He went inside. He was very strict in that matters. बहुत कड़क थे. गए अंदर, सब पूरा मटका वटका फोड़ दिया, चूल्हा को लात मारा, आटा वाटा गिरा दिया,
एंड यहाँ तक कि गोविंद को पीट दी, इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। और ये पूरा वो बैरिस्टर देख रहा है, बोला आज तो कसम इसका चेला बनना है, इसका तो गलती से भी चेला बनना नहीं है, मैं जाता हूँ बैक टू कलकत्ता। पर ठीक है, अभी 84 को स्टार्ट कर दिया है तो व्हाई नॉट आई कंप्लीट। तो he was still doing, but his heart was not with that Babaji. उस दिन शाम को जब इसने गिरा दिया, उस दिन वापस गोविंद गया, नया गोबर लेके आया। एंड यू नो स्पेशलिटी वाज वो 84 कोस परिक्रमा अपनी गैया के साथ करते थे, अपने ही गैया का दूध पीते थे, आई अपने ही गैया का गोबर का लेपन करवाते थे। ठीक है, मतलब नो आउटसोर्सिंग, एवरीथिंग इज इन हाउस। तो लेके जाते तो वापस गोबर का लेपन करवाया, किचन में वापस चूल्हा खड़ा किया, वापस नया सब्जी आटा गूंदा, रोटी बनाया, भगवान को भाव के खिलाया। और फिर एंड में शाम को उसका असिस्टेंट उसके पास आया और उसका पैर दबाने के लिए आया है। और तब उसकी आंखों से आंसू पानी टपकने लगा उसके पैर में, तो समझ गया आंसू टपक रहे हैं। तो उसने पूछा, अरे आंसू क्यों टपक रहे हैं, क्या मैंने मार दिया इसके लिए, गुस्सा हो गया क्या, रो रहा है क्या, मैंने मारा इसके लिए? बोला नहीं, मुझे आपका मार तो मेरे लिए प्रसाद है, आपका मार तो मेरे लिए प्रसाद है। वो जमाने की बात है, इस जमाने की बात है। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। आज को बोलेंगे तो उस जमाने में बोला कि भाई आपका आशीर्वाद है, मुझे इस बात का गम खाया जा रहा है कि आपको मेरे वजह से आज 3 घंटा खाना लेट मिला। पूरा प्रोसेस टुक 3 आवर्स। वापस गोबर, वो नहाया, उठा, नहाया, गोबर लेपन किया, खाना बनाया, भगवान को भोग धरा दिया। तो तब बाबा ने बोला, जाओ आज तुम्हारा अंतिम पेपर था, अंतिम परीक्षा। यू हैव पास्ड योर फाइनल एग्जाम, यू हैव पास्ड योर फाइनल एग्जाम। नाउ फ्रॉम दैट डे बाबा जी नेवर बेट हिम, नेवर हिट हिम, कभी मारा नहीं, कुछ नहीं, कभी डांटा नहीं, कभी बोला नहीं, बिकॉज ही वॉज टेस्टिंग, he was testing him। और उसको बोला, जा आज तेरे को जो चाहिए मांग ले, मैं देता हूं। बोला मैं मांगने के लिए मैंने सेवा किया ही नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हो वाकई में कुछ होना चाहिए तो बस मुझे युगल सरकार का जोड़ी का, राधा और कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाए, बस यही कृपा है, हो जाए। बस तू भक्ति कर, भगवान का नाम ले, करते हो जाए। इस तरह करते करते one day a day came when he was lying, like unconscious. All this other people came and told him that Govind is lying unconscious. Immediately Baba went, एकदम अचेत सा पड़ा था, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो उसने जैसे बाबा जी को देखा, बाबा जी माफ करना, मैं प्रणाम करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया? बोला बस जाने का समय हो गया तेरा? मेरा जाने का समय हो गया। बोला क्या दिख रहा है तुझे? मुझे बोल रहे हैं, मुझे निकुंज दिख रहा है जहां पे राधा और कृष्ण मुझे बुला रहे। He saw, literally saw। आपका आदेश चाहिए मुझे जाने का। said हाँ जा बेटा। This is a true incident, I'm not talking of something fictitious। And he left, he literally left his body in front of Malukdas ji and he went to his soul went into the Ananta Leela of Lord Krishna and Radharani. So what do we understand from this? Surrender. Surrender always has a price. And mind you, this same Chaudhary then became his own chela, khas unka ye bana. But point what I am trying to tell you is, we have to understand how great those souls were, and those who have written this Shastra. These acharyas, these babas are really great, but we are still interested in this material things. Today people want to learn about God from a movie made by a person who doesn't know about God. Is it not a tragedy? Someone showing you, come. Don't worry, I'm not going to beat you.
So, please understand that surrender is always challenging. If one has to surrender in life, if one has to surrender, it has always got to be unconditional. When you are attached, when you are having some attachment, that is raga. Raga means attachment. Your surrender will be conditional. Your level will be your surrender unconditional. कुछ ना कुछ आप परंतु किंतु कोई ना कोई कारण. अगर मैं किसी को पूछूं आप लास्ट वीक क्यों नहीं आए, तो प्रभु जी आना था, क्या है, दोस्त आ गया घर पे, पिक्चर का टिकट लेके आया, क्या है, दोस्ती बिगाड़ नहीं सकता हूँ, उसके लिए मुझे नहीं जाना था. सो दिस इज व्हाट इज दिस टाइप ऑफ तर्क हम लोग देके हम लोग वी ट्राई टू जस्टिफाई आवर अटैचमेंट्स. अटैचमेंट हमको है, जाना हमको है, बट हम लोग क्या करते हैं किसी और के नाम पे we can try to fulfill our things. So here Lord is saying, Vitaraga, once you are freed from krodha, bhaya, which also arises from attachment, and then anger. Attachment, yes, as Jigar had mentioned, verse dhyayato vishan pumsa sangaste supjayate sangas sanjayate ka kamat kama krodha vijayate क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रम सद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति. दिस इज अ फुल चेन ऑफ एक्शन. कैसा व्यक्ति का सिर्फ एक चीज के साथ अगर अटैचमेंट हो जाता है, आदमी उस व्यक्ति का सत्यानाश गारंटी, कुछ नहीं हो सकता उससे. क्यों? अटैच्ड. ध्यायतो विषय, बस उसी चीज के बारे में हम सोचते रहते. क्यों? वी आर अटैच्ड टू इट. संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामा, फिर उसकी उस चीज के बारे में कामना उत्पन्न होती है. कामना मीन्स डिजायर. व्हाट इज कामना एंड डिजायर में अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंस? बोलिए. आई हैव एक्सप्लेन्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कामना एंड डिजायर? You know, what is the difference between milk and rabdi? Kamna is very strong. कामना is nothing but desire को अगर घोल के मतलब वही बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहोगे. I always give this example of that movie डर. वही सोच के what happens? That becomes lust. Calm may not be only of or the opposite sex. It can be for money. क्यों? व्यक्ति उस जब पैसे के लिए उसकी कामना हो जाती है, वो कोई भी गलत चीज करने को तैयार है. He is ready to do something in the wrong way, in the wrong manner. He is ready to earn. Why? Because he wants to fulfill his कामना. ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते develop attachment. Once attachment comes, then calm. That is condensed form of desire, which you call as lust also. That comes. उसमें से आपका क्या होता है? अब ये जो इच्छा है या तो आपकी पूर्ति होगी या नहीं होगी. हो गई तो क्या फायदा? नया डिजायर्स आ जाएगा, है ना. अगर समझो आपके पास आईफोन आ गया, जब तक नहीं आया तब तक अच्छा है. आ गया तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट लेटेस्ट जो भी आईफोन है वो आना चाहिए. हर कोई व्यक्ति जो गाड़ी में घूमता है क्या देखते हैं? अरे वो गाड़ी अच्छा है, नेक्स्ट टाइम वो गाड़ी है. अरे गाड़ी पे बैठे है ना, रास्ते पे तो नहीं है, बट स्टिल देयर इज नो एंड. देयर इज नो एंड टू इट. ऑलवेज योर लस्ट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल. ऐसे आप बढ़ते रहते. तो पूर्ति हो गई तो और कामना आएगी, और पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आएगा. यू विल गेट एंगर. क्यों? अरे भगवान उसको दिया, इसको दिया, मुझे नहीं दिया. यू आर ऑलवेज इन एंगर. सो इट इज बेटर. रूट कॉज ऑफ दिस होल थिंग इज व्हाट? काम, अटैचमेंट. So let's cut off that attachment itself so that this whole chain doesn't come. And then Lord says
त्यादोषं पुंसा संगस्य सुपजायते संगत संचयते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध में क्या होता है? व्यक्ति का सम्मोह, कंफ्यूजन हो जाता है, इज कंप्लीटली बिविल्डर्ड। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम। स्मृति मतलब ज्ञान का भ्रष्ट हो जाना। जैसे कई बार आप देखते हो गुस्से में व्यक्ति खून कर देता है, उसको पता है अच्छी तरह से खून नहीं करना चाहिए, उसका क्या सजा होगा, सब अच्छी तरह से पता है, फिर भी क्यों कर देता है? बस उस दैट मोमेंट ऑफ एंगर। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति स्मृति भ्रम से बुद्धि नाशो। बुद्धि जो इंटेलिजेंस इज दैट कि मुझे नहीं करना चाहिए, करूंगा तो मुझे जेल जाए, फिर भी वो बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाशा प्रणश्यति, उसका विनाश हो। तो दिस इज द रूट कॉज। दैट इज व्हाई लॉर्ड इज सेइंग छोड़ दे। जब तेरा ये सब चीजों से मोह, तेरा जो अटैचमेंट है भौतिक चीजों के साथ, जो अटैचमेंट है, ये जब तू फ्री हो जाएगा ना, तब तू मेरे बारे में you can think about me. Tell me, how many people remember God when they are going for a nice party, when they are going for a nice vacation, when they are going for a resort or for a marriage, anything, going to the mall, they remember God? Why? Because that right now the mind is in that attachment. जब वो attachment से आपका दूर होगा, then you can put your mind in God. That's why I always say Sunday morning you can be present only in one place. You can't be present at two places. Many people are present in two places also. Physically their body is here in the classroom. Mentally they are somewhere else. है ना? There is possibilities there, that but this is the only way it can be possible. You are not Krishna to expand yourself. एक बड़ा एक शरीर मॉल में जाएगा और एक शरीर मेरा क्लासरूम में जाएगा। बट जिस दिन आप तय कर सकते हो हाँ मुझे वो नहीं देखना है या वो नहीं करना है, तभी आप इस पे ध्यान दे सकते। तब तक आप भक्ति में ध्यान नहीं दे पाओगे। भक्ति में ध्यान दोगे उसके बाद आपका शरणागति का पॉइंट ऊपर खड़ा होता है कि वेदर यू कैन सरेंडर और यू कैन नॉट सरेंडर। देन यू कम इनटू द स्टेज ऑफ सरेंडर। Then what happens? You are fully situated in knowledge. जब आप इन चीजों से दूर हो जाते हो, then you are situated in knowledge. What is that knowledge? Can anyone tell me? किस ज्ञान में आप बैठे हो? Little louder. What do you say? Understand God. Yes, you are now understanding the importance of God in your life. See. This set of knowledge, I am not body, I am the soul, I am a part and parcel of the God and all, ये हमको पता है। But जब ये सब छूट जाता है ना, उसके बाद you come to a situation where now you realize, no, now the importance of God is that I should understand the importance of God, or rather, I should go in the depth of devotion. You go to the second. पहले सब लोग first basic level is कर्मकांड level. Someone was asking me on Thursday class, प्रभु जी वो श्रावण में बाल नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी नहीं करना चाहिए। श्रावण में बहुत कुछ लिखा है नहीं करना चाहिए, इसके लिए तो गटार बनाते हो तुम लोग। गटारे क्यों बनाते हो? कि बहुत कुछ नहीं करना है, पहले करके लेता हूँ। जैसे 1 महीने के बाद अब जिंदा नहीं रहने वाले। अरे वो बाद में भी कर सकते हो ना, साल भर वही कर रहे हो, जीवन भर वही किया हो, जीवन भर वही किया हो। यू हैव ऑलवेज बीन टेकिंग केयर ऑफ योर सेंसेस नाइसली एट ऑल टाइम्स एंड ऑल वेज। इसके लिए 10 झूठ भी बोलना पड़ा तो नो प्रॉब्लम, बट मुझे आई शुड फीड माई, आई शुड हैव लाइफ माई वे। उसके लिए हमने जीवन भर किया है। एंड व्हेन इट कम्स टू सिंग श्रावण आ गया, नो नॉनवेज, नो दारू, नो बैड थिंग्स। क्यों? दिस इज द बेसिक इंप्लीमेंटेशन व्हाट शास्त्र कैन टेल यू कि भैया कम से कम साल भर में आउट ऑफ 12 months 1 महीना तो मुंह बंद रख, तेरे इंद्रियों को थोड़ा आराम दो। 1 महीने को तो कम से कम आराम दो।
If you can't control, so what is it? And this is there in all religions. Huh? You go to Muslim religion, they got that Rosa, that Maina of Rosa. You go to Christians, they got the season of Lent, that 1 month they don't eat. So what does this mean? Every religion, bottom line is, it tells you to stop from doing sense gratification. इंद्रिय तृप्ति मत करो. और हम लोग क्या है, इंद्रिय तृप्ति कैसे करना है, उसमें भी रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स. श्रावण का एक दिन पहले मना लेंगे, श्रावण का अगला दिन खत्म होती है, अगला दिन थैली भर भर के. क्यों? ओनली पर्पस क्या है हमारा, एक ही जीवन का फोकस क्या है, इंद्रिय तृप्ति. और उसके वजह से भगवान जाने दे, क्लास ही नहीं जाने, भर के लेके जाने के आज घर पे. क्लास जाएंगे तो प्रभु जी बोलेंगे अरे मत खाओ, ये मत, यू डोंट डू दिस, यू डू दिस. प्रभु जी बोलेंगे तो मेरे को डिस्टर्ब होगा. आई कांट बी इन टू प्लेसेस, राइट? When I am enjoying, I am having the piece of meat or a glass of wine, and then Prabhuji popping up from that. Hey, don't do that, don't do that. It's very bad. So you can shut down only one, either this or this. That is why Lord is saying, when you are free from all this attachment, you come situated in jnana, knowledge, and then once you are in knowledge, आपका तपस्या शुरू होती है. कौन सी तपस्या? अरे ये सब गलत चीजें नहीं करना, यही तो सबसे बड़ा तपस्या है. कि बचपन से यही करते आए और अब अचानक बोल दें किसी को आपको कल से शराब नहीं पीना है, कल से आपको जुआ नहीं खेलना है, कल से आपको नॉनवेज नहीं खाना है. कितनी बड़ी तपस्या है प्रभु जी, बोले है कि नहीं है? मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनका. हाँ, ये गॉट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टफ ना, इट्स वेरी टफ. It's not an easy joke. That's why Prabhupada calls them Mahabahu. They are really strong. They have left the most dearest attachments. Then, when you are doing tapasa means doesn't only require leaving this following 4 regulative principles is not tapasa alone. Then you come to the level of following Ekadashi. उसमें भी बहुत सिलेक्टेड खाना है. एक्चुअली एकादशी में खाना ही नहीं है. ठीक है, हम लोग, हमारे प्रभुपाद जी बहुत मर्सीफुल हैं. हम उस दिन 5-5 बाल्टी मिल जाता है सब्जी साथ, 6 बाल्टी मिल जाते हैं 6 बाल्टी मिल जाता है खाने के लिए. क्यों? द ओनली रीजन इज प्रभुपाद सेड एटलीस्ट ठीक है, इफ यू कांट कंट्रोल योर सेंसेस, योर हंगर यू कांट कंट्रोल, एटलीस्ट यू डोंट ईट ग्रेन्स. अन्न मत खाना उस दिन, क्योंकि अन्न में उस दिन पाप रहता है. ठीक है, खा लो. बट ऑल दिस तपस्या हैज अ फल. कोई भी तपस्या वेस्ट नहीं जाएगा. यू वोंट बिलीव, शास्त्र सेज even if a married man spends 1 night as a brahmachari, even that has got a phala. 1 night also, if he spends as a brahmacharya, it has got phala. Every tapasya is benefited. But क्या है? Benefit you can't encash the way you want it. Mind you, you can't redeem it. जैसे आपने को मॉल में कूपन मिलते हैं, वो क्या होता है, ये ब्रांड का लोगो तो ही मिलेगा, 1 पे 1 फ्री, मतलब उसका ही लेना पड़ता है. मेनी कैचेस एंड हिचेस. तो उसी में शास्त्र में भी ऐसे बहुत कैचेस. अब क्या देगा आपको? बहुत जन्मानाम अंते, बहुत जन्मों के बाद का जो आपका पुण्य अर्जित हो जाता है ना, जमा हो जाता है ना, तो आपको भगवान, आप बोल सकते हो प्लीज एनकैश मी विद अ नाइस लिमोजिन कार और रोल्स रॉय कार एंड नाइस फ्लैट. एंड हमारा लेवल वही रहेगा, ज्यादा के वर्लीज, अपना पेडर रोड, बस इसके आगे अपना सोच जाने से. जो फॉरेन ज्यादा घूमता है, बोले ओके गिव मी इन यूएस एंड सिलिकॉन वैली दिस एंड दैट, व्हाटएवर इट इज, ब्ला ब्ला ब्ला. बट वी आर स्टिल स्टक इन दिस मेटेरियल रियलम ओनली, जहां पे आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप किधर भी चले जाओ. यू गो टू अमेरिका ऑल्सो, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों में से एक क्लेश तो रहेगा ही रहेगा. Nowhere in this world can a person be happy. तो हम लोग क्या करेंगे? उसको कुछ ना कुछ मेटेरियल तरीके से रिडीम करना चाहेंगे. बट हाउ डज लॉर्ड रिडीम इट बैक टू यू फॉर यू? ही गिव्स इट टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ सत्संग. जा,
जाके सत्संग में बैठ, हरे कृष्णा कर, हैं? और बाद में वहां से थोड़ा और तपस्या कर और आगे बढ़. So this is what is the biggest benefit of doing tapasya. So at any given time, tapasya never goes as one may feel, what am I doing? All my friends are enjoying nicely, eating all every day, and they are flourishing, and I am also not flourishing. Also, I am rotting. In fact, this is the problem. Is we can understand progress only materially. अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है जीवन में, तो हम किस लेवल पे गिनते हैं? उसके पास कितना धन है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं. अरे वो इंसान का प्रगति का दंडमाप नहीं है. That is not the measuring stick for a person's progress. That is as per the karma. जैसे उसने कर्म किए हैं, उसको उसका फल मिल रहा है. That is, people have mentioned n number of things. It's mentioned in the Shastra that a person who, as per the law of karma, and why we are, Shastra modifies it to one more higher level and says, कर्मा हम खुद चाहते हैं कि कर्मा का एंजॉयमेंट हो. इसके लिए कई बार कुछ चीज अपने हिसाब से नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, मेरे कर्म फूटे कि मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा चीज हो रहा है, या मुझे ऐसा चीज प्राप्त नहीं हो रही है. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है? वी स्टिल वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ आवर कर्मास. इवन दैट इज एन अटैचमेंट. अगर आपके कर्मों का फल भी आप अगर भुगतना चाहते हो तो वो भी एक तरह से राग है. दैट इज वाई कर्मयोग का पहला सिद्धांत क्या है? जो भी हो, फायदा हो नुकसान हो, आई शुड जस्ट डू माई ड्यूटी. कई बार लोग आके मेरे को बोलते हैं, प्रभु जी हमने कितना किया बेटे के लिए और एंड में बेटे ने ऐसा कर दिया, हमने इतना किया परिवार के लिए और परिवार वालों ने ऐसा कर दिया. मैं बोलता हूँ आपने किया क्या परिवार में? और अगर किया तो आपने आपका कर्तव्य निभाया, उसके रिटर्न में मांगते क्यों? Why you want to ask in return? It is your duty. If you have taken care of your children, it is your duty. The children are taking care of you, your parents, it is their duty. कोई बच्चा के बोलेगा मैं पिताजी को इतना संभाला एंड में पिताजी ने मुझे 1 करोड़ रुपया दिए नहीं, तो अच्छा पैसे के लिए कर रहे हो? आपको कुछ लाभ चाहिए था इसके लिए कर रहे हो? आपको सेवा इसके लिए करना है क्योंकि वो आपके पिताजी है या आपकी माँ है, उनके लिए आप सेवा कर रहे हो. That should be immaterial of any personal benefits or tags attached to it. That is why Lord says, Bhava Jnana Tapasa Puta, then you become purified. जब आप तपस्या करते हो और पहले तो राग अटैचमेंट्स छोड़ दिया आपने, क्रोध से छोड़ गए आप, इससे छोड़ गए, ये सब छोड़. क्रोध के ऊपर एक छोटा सा कहानी. एक बार एक साधु बाबा बहुत दुखी थे कि भाई वर्षा नहीं हो रही है, पानी बारिश नहीं आ रहा है. तो सब बोले ठीक है, भगवान के पास क्यों जाए, इसके लिए मतलब छोटा सा कार्य है, इसके लिए भगवान के पास नहीं जाते हैं, चलो इंद्रदेव की पूजा करेंगे. तो ये सब चल रहे थे. तो एक शिष्य था उनका, उसको गुस्सा है, मेरा गुरु निष्ठा इतना है कि मेरा गुरु, जरूरत क्या है मेरे गुरु जी को जाके वहां पे जाके इंद्रदेव के सामने बोले या गिड़गिड़ाए. तो उसने पहले जमाने में वो पत्थर पे घिसते थे सिलपट, वो लेके सीधा गया. बोला ये इंद्र बारिश गिराता है कि नहीं, मतलब टांग तोड़ दूंगा थे. हाँ चला, मतलब टांग तोड़ दूंगा. What do you think? My guru has to come to you asking for rain? I'll break this, and I have got full faith that you will do it. Otherwise, I'll break your leg. जब ऐसा बोला उसने, उस दिन शाम को जोरदार बारिश आ. नेक्स्ट डे दे वर टू गो टू डू इंद्र पूजा. पहले दिन बारिश हो. इंद्र पूजा नॉट द वे व्हाट इज मेंशन्ड इन द शास्त्र, बट दे ऑल वांटेड टू प्ले टू इंद्र देवता कि भाई बारिश बरसा दो. तो अगला दिन जो बारिश हुई, इतना हुआ कि पूरा भर गया, ताला वाला भर गया. तो जब गुरुजी को पता चला, गुरुजी ने उसको बुलवाया, कल से तू यहाँ नहीं रहेगा,
you have to leave the ashram. You have to leave me and you have to leave the ashram. कि क्रोध साधु का गहना नहीं है. It is not a thing which should be possessed by a sadhu. When he told him like that, उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया, बोले माफ कर दो, मैं आपको और आपका संघ को छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूं. एक काम करो, आपको जो मुझे पनिशमेंट दंड देना चाहते हैं दो, दंड. तो उन्होंने तुरंत उसको बोला, इस दुनिया में जितने भी तीर्थ स्थान है वहां पे जाके नहा के पूजा पाठ करके फिर ही मेरे पास आता. जितना तीर्थ स्थान इस देश में है सब जगह. अब ये सोचने लगा मैं क्या करूं, सब तीर्थ स्थान में जाऊं, कैसे जाके नहा के आऊं, दर्शन करके आऊं. तो ठीक है, तुरंत बाबा बोले ओके बाबा जी जा. एंड ही केम बैक विद इन 48 मिनट्स. कितना 48 मिनट्स में रिटर्न आ गए. बोला अच्छा सब जगह घूम के आ गए, सब दर्शन करके नहा के आ गए, सब तीर्थ स्थान. हाँ मैं नहा के आ गया. अच्छा ठीक जाओ, अब ठीक से रहना, क्रोध मत करना बोल के बाबा जी ने भेज दिया. सब लोग बोले क्या है बाबा जी भी बेवकूफ बना रहे हैं. यहाँ से अगर गया जाना है तो भी टाइम लगता है, 48 मिनट्स में ये इंडिया के सारे तीर्थ करके आ गए. हाउ इज इट पॉसिबल. बाबा भी बेचारे एकदम साधु हैं, वो कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी कुछ बोले नहीं वो लोग बैठे. फिर एक 1.5 महीना हो गया. उसके बाद एक मंत्री, इसका अकबर का मंत्री आया. दिस वाज अ ट्रू स्टोरी. अकबर मंत्री आया तो देखने के लिए कि क्या हो रहा है. बाबा जी का बहुत नाम सुना, एक बार देख लेते हैं बाबा जी कौन. और फिर एक बिजनेसमैन, उसी दिन एक बड़ा सा बिजनेसमैन आया, मतलब व्यापारी. तो उसने बोला बाबा जी आपका चेला ने मेरा मदद किया. मेरे चेले ने मदद किया. हाँ वो मेरा जो नाव था ना वो सागर में फंस गया था. तो उसने बोला जाओ मेरे गुरु का स्मरण करो और तुमको तुम्हारा नाव इस भवंडर से निकल जाएगा. वो आकाश मार्ग से जा रहे हैं. उन्होंने बोला अच्छा. तो उनका मैंने आपको स्मरण किया, मेरा नाव ठीक हो गया, मतलब मैं उसमें से भवंडर से बाहर आ गया. तो बस मुझे आपको शुक्रिया बोलने के लिए आया था मैं, और आपके लिए एक हीरो का हार लेके आया. महंगे हीरो के हार, बड़े बड़े सॉल्टेट्स, बड़े बड़े सॉल्टेट्स. ये घर से कैलकुलेट करो कितने सेंट है. बड़ा हार लेके आया. तो लेके आके गले में डाल. चलो बाबा जी बोल हाँ गाल में डाल. इतने में मंत्री देख रहा था, यार ये कौन सा बाबा जी इतना महंगा वाला हार क्यों पहन के बैठा है. तो उसने उस मंत्री को बुलाया, तुमको ये हार पे इच्छा है ना, लो तुम्हारे गले में डाल. बाबा जी दे दिया उसने. और आपको पता है मैंने इसके लिए कितना पापड़ बेला है, मेहनत करके आया है ये हार. बोला कैसा. उसने अपना जो ऊपर ये होता है ना वो हटाया और दिखाया, यहाँ पे पूरा छिला हुआ है, लगा हुआ है. तो बोला क्या हो गया, कैसे लग गया आपको. आप तो यहीं बैठे हो, कहाँ कैसे लग गया, इतना घाव कैसे हो गया. क्या करूं, चेले ने तो बोल दिया, फिर उसका तो कर्म तो था ही भवंडर में फंसने का, तो मैं उसको बाहर निकालना था मुझे, तो मैंने उस नाव को कंधा दिया, तब यहां छिल गया. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. 2 things. First is anger is bad, but if one has got full guru nishtha, then surrender is possible. One should have full guru nishtha. अगर जब तक गुरु पे निष्ठा नहीं हो, भगवान पे निष्ठा न हो, तो वो व्यक्ति भगवान को समर्पण नहीं कर सकता है. अगर डायरेक्ट यू कांट गो टू गॉड, यू नीड टू गो वाया ए मीडियम, वाया ए medium, and that medium is Guru. So if one may be purified by doing tapasa and this and that, one may get purified, but still one will require a medium to access God. Like to access the railways you need an app. Through an app you can book a ticket. You can't directly book a ticket, or else you have to go all the way to the counter and book the ticket. You can't call up the railway minister and say, okay, book my ticket for me. Right? You got to go through via medium.
once Guru Nanak ji had gone to Jagannath Puri. It's a fact, nobody knows the Jagannath, जो गुरु नानक जी जो पंजाबियों का जो आरती है what was composed at जगन्नाथ पुरी. तो वहाँ पे जाके वहाँ खड़े थे, तो वहाँ पे सभी लोग गुरु जी के पैर पड़े. तो वहाँ का पांडा को बहुत गुस्सा है. What is this nonsense? यहाँ एक ही नाथ है जगन्नाथ, और कोई नहीं है. There are nobody else greater than जगन्नाथ जी. गुरु नानक जी immediately said, sorry, I don't know, मैं तो अज्ञानी व्यक्ति हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना, बट आप बड़े दयालु हैं, आपसे हम जरूर ज्ञान लेंगे. आप एक काम करना, मुझे एक आदत है, रोज मैं हवन करता हूँ, अग्निहोत्री हवन करता हूँ, तो आप मुझे प्लीज थोड़ा अग्नि दे सकेंगे, फायर. तो पांडा भी जरा कूल हो गया, ठीक है दे दूंगा, कल सुबह दे दूंगा. तो बोला नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही बॉट है कोयला, बर्निंग कोयला. तो सर ये आप कोयला लेके, कोयला नहीं चाहिए मुझे सिर्फ आग चाहिए. आग मशाल में लेके आओ. मशाल नहीं, मेरे को आग चाहिए, सिर्फ आग चाहिए. वे पांडा को आया गुस्सा, बोला तू आग मांग रहा है, तो आग लाएगा तो मैं तो कोयले में लाऊंगा या तो मशाल में लाऊंगा. साहब अभी तो आप मुझे तो सिर्फ आग से मतलब है, मुझे ना मशाल चाहिए ना कोयला चाहिए. That time Guru Nanak explains, like to get fire you need a medium. To carry fire, suppose you want to carry fire, so you have to carry either in a burning coal or in a wooden stick. मशाल में लेके जाना पड़ेगा. मशाल के लिए कोई नहीं लेके जा रहा है, बट मशाल में जो आग जल रही है उससे आपको कार्य है या उससे आपको लेन देन है. Similarly, you want God, fine, but you cannot get God. Along with that God, जैसे आग, मशाल और आग दोनों साथ ही साथ मिलेंगे, या जलता हुआ कोयला और आग दोनों साथ में मिलेंगे, उसी तरह गुरु बिन ज्ञान not possible. This is impossible. You need to have a spiritual master. Without a spiritual master, you cannot get knowledge. It is not possible. You cannot get God. You cannot get knowledge. You can't get anything unless, because for even in material world, to become a good thief, you need to have a guru. अच्छा चोर बनने के लिए भी आपको गुरु की जरूरत पड़ती है. अच्छा टीचर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा जो भी आप कोई भी कार्य करते हो, कोई ना कोई उसको थोड़ा सिखा के जाता है, तभी आप कर पाते हो, नहीं तो नहीं कर पाते. तो उसी तरह है कि unless and until one doesn't surrender to a spiritual master, one cannot get, or rather one cannot know the way to surrender to God. Guru teaches you how to surrender. Surrender is your job, but Guru only teaches you how to do that. How to do that, how to achieve that surrender, that you learn from the Guru. So here Lord is saying, once you have become purified, then mad bhavam agataha, you can attain that transcendental love for me. But for all this, there is one catalyst, and that catalyst is the teacher, the Guru. A catalyst is required. A person who facilitates is required. For example, whatever knowledge is given to you is already there in the Shastra. We do not create any knowledge. We are only giving you the knowledge. But where is the knowledge coming from? It is coming from the Shastra. That is why Prabhupada writes in the introduction of the Bhagavad Gita itself that we are like postmen. A postman doesn't write his own letter. What does he do? He just delivers the letter. So the knowledge is already lying in front of you. Bhagavad Gita में ज्ञान पड़ा हुआ है. हम सिर्फ उसको और थोड़ा उठा के आपको दिखाते. That is our purpose. Okay, with this I'd like to close today's session. Anybody has got any doubts and questions, they can ask.